Welcome to Department of Journalism and Mass Communication. We have gathered here to celebrate World Radio Day today, and we have a very special guest with us, Dr. Sunil Devdar sir. So I request our HOD, Dr. Keshav Sate sir, to please come upon stage and have their seats. So today is World Radio Day. Before giving the introduction of this World Radio Day, I request Dr. Keshav Sate sir to please felicitate and welcome our guest, Dr. Sunil Devdar sir. Our guest, Dr. Sunil Devdar sir, he is willing to give his book to our department. So thank you so much, sir. So let's hear some background of this World Radio Day before proceeding ahead. So World Radio Day is on 13th February each year. It's now its 12th year and was first announced back in 2011 by UNESCO's member states. 2 years later, in 2013, the United Nations General Assembly gave it their stamp of approval and endorsed it as an international day. This year's theme, each year UNESCO celebrate World Radio Day with some theme. So this year's theme is Radio and Peace. And the rationale behind this theme is, I quote, on World Radio Day 2023, UNESCO highlights independent radio as a pillar for conflict prevention and peace building. So UNESCO's Radio and Peace theme in response to the sheer amount of conflict there is in the world. Be that war in the typical sense, like Russia's attack on Ukraine, or conflict within our media narratives, like how things such as migration is reported. But professional radio holds a lot of power. While it can increase tensions more often, it dampens it. Through its commitment to serve the public, it provides independent and unbiased reporting and investigation, fact-checking, and accuracy. Professional radio with journalistic integrity is a foundation for stable democracies. On this World Radio Day, UNESCO is urging countries to support independent radio as it's integral to peace and stability. I will just go through previous themes. So it was launched in 2012, so there was no theme in the first year. Later in 2014, the theme was Gender Equality and Women's Empowerment in Radio. In 2015, Youth and Radio. In 2016, Radio in Times of Emergency and Disaster. In 2017, Radio is You. In 2018, Radio and Sports. In 2019, the theme was Dialogue, Tolerance and Peace. In 2020, the theme was Radio and Diversity. In 2021, the theme was New World, New Radio, Evolution, Innovation and Connection. And last year, that is in 2022, the theme was Radio and Trust. And now we are celebrating our theme, this year's theme, Radio and Peace. So the objective behind this is, according to UNESCO, the objective of the World Radio Day is to raise public awareness of importance of radio and encourage decision makers to use it to provide access to information and improve international cooperation among broadcasters. And why radio? Because radio is low cost medium having exceptional reach in remote areas. It plays a crucial role in emergency communication and disaster relief. So this is a very brief background behind this particular theme and particular day of World Radio Day. We are very eager to listen our honorable guest, Dr. Sunil Devdar sir. I will briefly give his introduction. So Dr. Sunil Keshav Devdar, Assistant Director Program, retired on 31st July 2016 after completion of 38 years of dedicated service.
He was MA in Hindi and Economics and also completed PhD in Hindi. In 1978, he joined All India Radio Chhatrapur, MP, as announcer. In 1990, he cracked UPSC and joined as program executive. He served AIR Chhatrapur, AIR Mumbai, and AIR Pune. He joined AIR Pune in 2014 as PEX. In July 2016, he got promotion as Assistant Director in AIR Pune. During his tenure in AIR, he produced several dramas and features. He established and made very popular Kalash Hindi magazine program. He was a versatile personality having immense knowledge of Hindi literature, which saw its repercussions in his programs. His programs were mainly meant for studied listeners. Exhaustive research and extreme passion to give his best made his programs outstanding. Beside routine programs, he conceptualized several series like Zinda Kahaniya, Bade Anmol Geeton Ke Bol, etc. He was known to AIR people as a disciplinarian and hard talk master. But he was more popular outside for his talented and mesmerizing comparing of various musical programs. He also worked as member of Board of Studies Hindi Language in Pune University, ex-member of Workers Education Pune Board, ex-member of Board of Studies Marathi Language. He was selected as poet lyric on AIR panel. He delivered speeches on various subjects in various institutions and organizations. He has very interesting publications in his name, like Mat Khicho Antar Rekhaye, Mohan Se Mahatma, शब्द कलश, संवाद अभिशेष है, आकाश में घूमते शब्द, और there are so many interesting, there is this long list of his publications and his contribution to the field. I just want to mention some of his interesting awards and recognition. So Maharashtra Rajya Hindi Sahitya Akademi for his Mohan Se Mahatma, ISRO की कहानी, सारस्वत सम्मान, सृजन संकल्प संस्था उनके द्वारा दिया हुआ मंजुल मयंक पुरस्कार, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा समिति पुणे के द्वारा साहित्य सेवा सम्मान, अखिल आकाशवाणी राजभाषा सम्मान, आचार्य आनंद ऋषि साहित्य निधि पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी का गजानन मानव मुक्तिबोध पुरस्कार, और इसके अलावा कई अन्य संस्थाओं और इनसे सम्मानित किया गया है और उनसे अभिनंदन एवं पुरस्कार मिले हैं. His farewell ceremony was organized in AIR Pune on 29 July in auditorium. The response from all staff was overwhelming. So we are very grateful and fortunate to have such wonderful personality here. Before proceeding to his lecture, now I would request our HOD, Dr. Keshav sir, to share his words. नमस्कार. धम्म सर इंग्रजीमध्ये बोलले, हे हिंदीत बोलणार आहेत, मग मी मराठीत बोलतो. वर्ल्ड रेडिओ डे 13वा मला वाटतं 2011ला सुरू झाला. आपण हे जे कार्यक्रम करतो, मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं की त्याला एक टॉपिकॅलिटी असतेच, म्हणजे त्या दिवसाचं महत्त्व, पण तेवढंच त्यात अध्यारूत नाही आहे, काय तेवढंच त्यात अपेक्षित नाही आहे. तर ह्या निमित्तानं आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये रेडिओ नावाचा जो विषय आहे तो पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेर जाऊन समजून घेता आला पाहिजे. म्हणून अशा पद्धतीचे कुठल्याही विषयावर जेव्हा आपण कार्यक्रम करतो तेव्हा पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेर जाऊन जेव्हा तुम्ही हे विषय समजून घेता तेव्हा ते तुम्हाला जास्त चांगले समजतात आणि परीक्षेच्या पेपरमध्ये उत्तरं लिहिताना मिळणाऱ्या मार्काच्याही पुढे ते तुम्हाला घेऊन जातात. आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांमधून विषय समजून घेणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. रेडिओ हे खरं म्हणजे आपल्याकडचं सर्वात जुनं माध्यम आहे. म्हणजे मला वाटतं 1922-23 सालापासून भारताच्या मातीत रेडिओ या त्या रूपात आहे. म्हणजे गेली 100 वर्ष रेडिओ भारताच्या मातीत आहे. आणि ऑल इंडिया रेडिओ तर 1936 पासून आपण भारतभर ऐकतोय. रेडिओ
याचं एक वैशिष्ट्य आहे की जे मला सगळ्यांना माहिती आहे, ते म्हणजे आपण रेडिओ कुठेही ऐकू शकतो. म्हणजे रेडिओ ऐकताना आपण दुसरं काम करू शकतो. टी व्ही पाहताना किंवा मोबाईल पाहताना नाही करू शकत, नाही का, त्यातच अडकून बसतो. पण रेडिओ ऐकताना आपण वेगवेगळी कामं करत रेडिओ ऐकू शकतो, गाण्यांचा आनंद घेऊ शकतो. म्हणजे आपलं रुटीन आणि त्याच्या बॅकग्राऊंडला चाललेली करमणूक किंवा थोडीशी माहिती ही आपण सहज घेऊ शकतो. रेडिओचं दुसरं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य मला तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं नमूद करावं असं वाटतं, ते म्हणजे रेडिओला चेहरा नाही आहे. चेहरा नाही आहे इन सेन्स रेडिओवर आपल्याला कोणी दिसत नाही, हो की नाही. पण रेडिओच्या न्यूज ऐकतो, रेडिओचे फीचर ऐकतो, रेडिओच्या मुलाखती ऐकतो, रेडिओचं नभोनाट्य ऐकतो, तेव्हा ती जी व्यक्ती असते, ती कॅरेक्टर असते, ते कलाकार असतात किंवा ते जे गेस्ट असतात, ते जे काही बोलत असतात त्या बोलण्यावरून आपण ती आकृती व्हिज्युअलाइज करत असतो, नाही का. म्हणजे एखादा विषय समजून घेण्यासाठी नुसतं ऐकणं महत्त्वाचं नाही, तर ते व्हिज्युअलाइज करणं ही महत्त्वाचं आहे. तर हे व्हिज्युअलाइज करण्याची कॅपॅसिटी आपल्यात निर्माण कोण करतं, तर रेडिओ. टेलिव्हिजनमध्ये काय ती सोय थेट असते, समोर माणूस दिसत असतो, तो कसा बोलतोय, कसा वागतोय, काय ॲक्शन करतोय आपल्याला दिसत असतं. पण रेडिओचे कार्यक्रम ऐकताना प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल माणूस आपल्याला पाहिजे त्या दृष्टीनं ती व्यक्ती, ते कॅरेक्टर आपल्या डोळ्यासमोर आणत असतं आणि तो कार्यक्रम समजून घेत असतं. मला वाटतं की श्रोत्यांमध्ये एक क्रियाशीलता निर्माण करण्याचं, श्रोत्यांमध्ये एक व्हिज्युअलायझेशन पॉवर निर्माण करण्याचं फार मोठं सामर्थ्य रेडिओने आपल्याला दिलेलं आहे. रेडिओचं आणखी एकच वैशिष्ट्य सांगून मी थांबतो, ते म्हणजे रेडिओच्या बातम्या, आकाशवाणीच्या बातम्या. म्हणजे आम्ही शाळेपासून कॉलेजपासून रात्री 8:45 वाजता आणि 9 वाजता हिंदी आणि इंग्रजीतून बातम्या आजही त्या चालू आहेत. त्या बातम्या ऐकल्या की तुम्हाला दुसरं काही ऐकायची गरज नाही. आजकाल काय होतं, चॅनलमधल्या सगळ्या बातम्या ऐकल्या तरी बातमी काय हे आपल्याला कळतच नाही. तसं रेडिओचं नाही आहे. रेडिओमध्ये संपूर्ण बातमी, संपृक्त बातमी, बॅलन्स बातमी, असं सगळं फार मोठं वैशिष्ट्यपूर्ण असं हे माध्यम आहे. आणि आजच्या रेडिओ दिनाच्या निमित्तानं मी डॉक्टर सुनील देवधरांचं इथं स्वागत करतो आणि त्यांच्या भाषणातून, त्यांच्या सादरीकरणातून तुम्हाला रेडिओ अधिक समजेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. ॲज सर सेड, आय थिंक आपल्या बऱ्याचशा मुलांना माहिती असेल, सरांनी जे बोललं ते आपण मीडियामध्ये 2 कन्सेप्ट्स आहेत, हॉट मीडिया आणि कूल मीडिया. त्यातील रेडिओ ही सगळ्यात कूलेस्ट मीडियम मानलं जातं, बिकॉज इट इन्व्हॉल्व्ह लेस सेन्सरी इन्व्हॉल्वमेंट अँड बॉडीली एंगेजमेंट. सो अशा कूल मीडियमबद्दल आपण अजून इंटरेस्टिंग गोष्टी डॉक्टर सुनील देवधर सरांकडून ऐकूयात. सो प्लीज सर. थँक्यू. धन्यवाद प्रोफेसर जावरे और डॉक्टर साठे. मेरा जब परिचय दिया जा रहा था उसी वक्त आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे किस भाषा में बात करनी है. लेकिन और भी खुलासा किया डॉक्टर साठे साहब ने की मी मराठीत बोलतोय पण ते हिंदीत बोलणार आहे. तो मेरे आगे जो धर्म संकट था कि मैं कहां से आरंभ करूं, उस संकट से मुझे डॉक्टर साठे ने उबार लिया. हम जब बात कर रहे थे डॉक्टर साठे साहब से तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 3 भाषाएं, आप हिंदी में बात कीजिए, आप मराठी में बात कीजिए, आप अंग्रेजी में बात कीजिए. तो मैंने साठे साहब से कहा कि ब्रॉडकास्टिंग का एक पहला नियम है कि आप जिस भाषा में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में आपको बात करनी चाहिए. तो मैंने सोचा कि आपसे जिस भाषा में मैं जीवन भर काम करता रहा उस भाषा में आपसे संवाद करूं. और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आपसे एक इल्तिजा है, आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि यहां बहुत से युवा लोग बैठे हैं. खुदा खैर करे, इज्जत खतरे में खानदानी है. खुदा खैर करे, इज्जत खतरे में खानदानी है.
इधर अपना बुढ़ापा है, उधर उनकी जवानी है। तो आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और मुझे जो बात करनी है, मुझे कोई लेक्चर नहीं देना, मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे आपसे एक संवाद करना है। और जो बात प्रोफेसर साहब ने कही या जो बात साठी साहब ने कही, उन्हीं दोनों बातों का आधार लेकर हम अपनी बातें आपसे करेंगे। आज विश्व में रेडियो दिवस मनाया जा रहा है और सारा कुछ बताया जा चुका कि जब यूनाइटेड नेशंस ने 1945 में यूनाइटेड नेशंस और उसके बाद में 1946 में यूनेस्को ने वर्ल्ड रेडियो डे की तरह इसकी शुरुआत की, स्पेन ने यह प्रपोजल किया था। ये सब चीज़ें आपको जानकारी में हैं और नहीं है तो आपके प्रोफेसर समर्थ हैं कि आपको बता सकते हैं, नेट पर भी बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि रेडियो के सामने कोई आकृति नहीं होती, कोई चित्र नहीं होता। मेरी एक 4 लाइन की कविता है, मैं रेडियो सुनता हूं, मैं रेडियो सुनता हूं और बनाता हूं भाषा में छुपे शब्द, भरता हूं उनमें कुछ रंग और खो जाता हूं अपने ही कल्पना लोक में। मैं रेडियो सुनता हूं क्योंकि रेडियो में आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसे कहीं भी रेडियो बाधित नहीं करता। जबकि अन्य माध्यम जहां आपके सामने एक चित्र या आकृति आ जाती है, वो निश्चित रूप से आपकी अपनी इमेजिनेशन पावर को, आपकी अपनी कल्पना शक्ति को बाधित जरूर करता है, क्योंकि आप उस फ्रेम में आ जाते हैं। रेडियो कोई फ्रेम नहीं बनाता, बल्कि फ्रेम बनाने की स्वतंत्रता देता है। आप आजाद हैं कि आप एक नाटक अगर सुन रहे हैं रेडियो पर, तो रेडियो का जो कैरेक्टर है, जो उस नाटक का हीरो है, पात्र है, जो कुछ भी उसमें पात्र हैं, जो भी उसमें कैरेक्टर हैं, वो आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उसका चेहरा मोहरा तय करते हैं। उसकी आवाज के आधार पर, उसके अभिनय के आधार पर आप चेहरा मोहरा तय करते हैं। वहां आपके सामने कोई चेहरा मोहरा नहीं होता। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रेडियो व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बाधित नहीं करता। आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद शायद इस पर भी कोई शोध हो और 50 बच्चे चुने जाएं जो मोबाइल और टीवी पर रहते हैं हमेशा, और 50 बच्चे चुने जाएं जो केवल और केवल या तो अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या रेडियो सुनते हैं। और ये निष्कर्ष निकलेगा, ये तय है कि उन बच्चों की कल्पना शक्ति, उन बच्चों की विचार करने की क्षमता, उनकी इमेजिनेशन पावर उन बच्चों से ज़्यादा होगी जो लोग रेडियो सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं। वो ज़्यादा बेहतर सोच सकेंगे। और इसका परीक्षण इस आधार पर हो सकेगा कि एक चित्र आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब आप अपने हिसाब से इस पर कुछ सोचो, कुछ बनाओ, तो आप पाएंगे, और ये परीक्षण होगा तो आप पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें। और इसका एक प्रमाण है सर, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 100 Years of Solitude उनकी जो पुस्तक थी, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो टीवी वाले भी दौड़े और फिल्म वाले भी दौड़े कि अब इस पर हम फिल्म बनाएंगे या इस पर एक सीरियल बनाएंगे। मार्क्वेज ने मना कर दिया कि मैं नहीं देना चाहता। तब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं देना चाहते, तो उन्होंने कहा अलबत्ता मैं रेडियो को दे सकता हूं। तो उनसे पूछा गया कि आप अलबत्ता रेडियो को दे सकता हूं, तो क्यों दे सकता हूं रेडियो को? तो उन्होंने कहा कि रेडियो को इसलिए दे सकता हूं कि रेडियो मेरा जो पाठक वर्ग है, या रेडियो के माध्यम से जो मेरा श्रोता वर्ग होगा, वो अपनी कल्पना शक्ति में मेरे चरित्रों को गढ़ेगा। वो अपने हिसाब से सोचेगा,
जबकि ये दोनों माध्यम, चाहे वो सीरियल बने यानी दृश्य माध्यम, तो वो कहीं भी मेरे पाठक की या मेरे श्रोता की उस स्वतंत्रता पर हमला करेंगे जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं ये रेडियो को अलबत्ता दे सकता हूं, लेकिन आपको नहीं दे सकता। रेडियो अपने आप में आज तो लगभग पूरे विश्व में शायद 44,000 रेडियो केंद्र हैं और भारत में लगभग 400 से ज़्यादा। लेकिन साठे साहब जानते हैं कि भारत में जो सरकारी माध्यम है, जो पारंपरिक रेडियो है, जिसे आप आकाशवाणी कहते हो या ऑल इंडिया रेडियो कहते हो, उसकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से अभी बेचारा है भी कि नहीं भी है। मेरी एक सर लंबी कविता है उस पर। आज दोषी कौन है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। वो व्हाट्सएप पर और मेरे वॉल पर भी मौजूद है। वो हम बाद में आपको सुनाएंगे भी जब आपसे और बातचीत करेंगे। तो भारत में और विश्व में रेडियो की अपनी भूमिका निस्संदेह है, और आज भी इतना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमला दृश्य माध्यमों का होते हुए भी रेडियो को सुना जाना एक सुखद एहसास है। लोग अभी भी सुनते हैं कुछ कार्यक्रम, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मोबाइल ने या टीवी ने या अन्य चैनल्स ने या अन्य दूसरे माध्यमों ने पुस्तक को भी और रेडियो को भी थोड़ा सा दरकिनार जरूर किया है। घर घर जो हम दृश्य देखते हैं, वो घर घर दृश्य क्या है, सब आपके हाथ में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी कोई व्यक्ति होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। कुणी आहे असं ज्याच्या हातात मोबाईल नाही? आहे सगळे? एनीवन जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है? आपके हाथ में मोबाइल नहीं? आप मोबाइल यूज नहीं करती या यहां नहीं लाई हैं? रेडियो में शब्द का ही महत्व है, बोलिए, हम देख थोड़ी पाएंगे। नहीं है, मोबाइल यूज नहीं करती हैं? अच्छा, देखिए अपवाद भी होते हैं। मोबाइल ऐसे लोग हैं। एक बार हम डॉक्टर श्रीराम लागूंना बोलवलं एका कामासाठी, केंद्रावरती आले। ते मोबाईल नव्हते वापरत, उनके हाथ में कभी मोबाइल नहीं होता था। तो लेकिन आज जो दृश्य है मोबाइल का, वो ये है कि टीवी पर तो आंख है, मोबाइल है हाथ। क्योंकि मोबाइल हाथ में है, जब उस पर ऐड आने लगे तो मोबाइल पर आ गए, फुर्सत नहीं है। टीवी पर तो आंख है, मोबाइल है हाथ, दुख है तो इस बात का, तन्हा पड़ी किताब। किताब की तरफ कोई नहीं जाता, किताब की तरफ कोई नहीं जाता। और इसीलिए वो गुलजार की एक कविता है, किताबें झांकती हैं अलमारियों से, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। और फिर वो बताते हैं क्या क्या किताब के माध्यम से होता था। शंकर वैद्य की भी कविता है, जिसको हमने ट्रांसलेट भी किया है सर, वो भी मौजूद है इस पर। शंकर वैद्य ने पहले लिखा है गुलजार से किताबें। तो शंकर वैद्य की कविता में किताबें अलमारियों में दम तोड़ती हैं, और गुलजार की कविता में किताबें अलमारियों से झांकती हैं। ये दोनों की कविता के उसका फर्क है। वो नींद में चलने की आदत गुलजार की किताबों को भी है और शंकर वैद्य की किताबों को भी है, लेकिन वो जाके अलमारी में दम तोड़ देती हैं। तो रेडियो अगर आप सुनते रहते हैं, कितने लोग हैं आप में से, ईमानदारी से बताइएगा, जो पारंपरिक रूप से हमारा ऑल इंडिया रेडियो या जैसे आकाशवाणी कहते हैं, वो कितने लोग सुनते हैं? विविध भारती हो, उम्मीद से ज्यादा है। बहुत अच्छे। तो इतने लोग पारंपरिक रेडियो जो आकाशवाणी है या जिसे आप विविध भारती दूसरा चैनल जो उसका है वो सुनते हैं। और रेडियो का सुना जाना इस मायने में
ज़्यादा सुखद है जो हमने अभी आपसे चर्चा की। अब मामला ये है कि हम विश्व रेडियो दिवस तो ठीक है कि 13 फरवरी है, भारत के संदर्भ से और कौन से 2 दिन हैं जिन्हें हम रेडियो के संदर्भ में याद करते हैं? भारत के संदर्भ में विश्व रेडियो दिवस, जिसकी आज थीम है शांति, पीस, क्योंकि इस समय पीस में बटा नजर आता है पूरा विश्व, टुकड़े टुकड़े। स्पेलिंग बदल दीजिए। तो कितने, हमारा सवाल था आपसे कि वो और 2 दिन कौन से हैं जहां हम भारत के संदर्भ में रेडियो का उत्सव मनाते हैं? कोई बता सकेगा? आप में से नोट कीजिएगा चाहें तो। आपके हाथ में डायरी है या मोबाइल है जो आजकल डायरी की तरह इस्तेमाल होती है? मोबाइल तो आजकल डायरी है, वो लिखा जाता है। हमें माध्यम से कोई परहेज नहीं है किसी भी, क्योंकि साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन रेडियो और टीवी, हमारे सर तो दोनों माध्यमों में बहुत सक्रिय रहे हैं। बेसिक फर्क यह है, हमारे रेडियो के कुछ पुराने जानकार ये कहते थे कि फर्क क्या है रेडियो और टीवी का। रेडियो में आर्ट और इमेजिनेशन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दृश्य माध्यम में टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य माध्यम में आप बिना तकनीक के काम नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो में आप एक अकेली यूनिट हो सकती है जो सब कुछ कर सकती है, जो लिख भी लेती है, जो वॉइस भी कर देती है, जो प्रेजेंट भी कर देती है, एडिटिंग डबिंग भी कर देती है, सब कुछ। तो हमारा सवाल था आपसे कि वे 2 कौन से दिन हैं जो रेडियो के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में याद किए जाते हैं? नंबर 1 वो है 12 नवंबर, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो में विजिट की दिल्ली केंद्र पर, 12 नवंबर की वो तारीख, और इसीलिए 12 नवंबर को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे, लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं भारत के संदर्भ में। एक और तारीख है जो भारत के संदर्भ में ही है, वो है 23 जुलाई। वो क्यों है? थोड़ा सा संदर्भ जावले साहब ने भी लिया और थोड़ा सा संदर्भ डॉक्टर साठे ने भी भारत के संदर्भ में लिया था। जुलाई, 23 जुलाई क्यों? 23 जुलाई इसलिए कि 23 जुलाई 1927, 23 जुलाई 1927 भारत में विधिवत प्रसारण की शुरुआत हुई, जिसको इसके पहले मद्रास में एक केंद्र हुआ, बंद हुआ, इसके बाद और भी 2 केंद्र आए, उसके बाद फिर बंद हुए। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो, और उस वक्त क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्रिटिश कंपनी का राज था, तो ब्रिटिश कंपनी ने टेक ओवर किया, और 23 जुलाई 1927 से, क्योंकि शुरुआत तो 23 से हो गई थी, 24 में भी हुआ, लेकिन 27 से हमारे भारत में, इसलिए हमने 23 जुलाई को भारतीय प्रसारण दिवस के रूप में हमने उसकी शुरुआत की। तो ये 2 दिन विशेष संदर्भ के हैं। जब सर ने फ़ोन किया कि 13 तारीख को कार्यक्रम करना है, तो हम थोड़ी देर के लिए, हमें भी लगा कि 13 तारीख को क्यों करना है, क्योंकि पहले तो आदमी अपने आप को याद करता है ना, तो हमें दोनों तारीखें याद आई पहले तो एकदम, कि न तो 12 नवंबर है और न 23 जुलाई है, लेकिन फिर एकदम क्लिक हुआ कि हाँ, विश्व के संदर्भ में 13 फरवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दोनों दिन हैं हमारे लिए भारतीय संदर्भ में, तो ये आकाशवाणी का नाम भी बहुत बाद में आया। पहले ऑल इंडिया रेडियो आया 1936, फिर आकाशवाणी नाम आया 1957, 67 से विविध भारती की सेवा शुरू हुई, जिसमें कॉमर्शियल शुरू हुआ, नहीं तो कॉमर्शियल की मनाही थी। तो रेडियो भी धीरे धीरे बदला, लेकिन जब धीरे धीरे रेडियो ने बदलाव शुरू किया, तो आज भी विविध भारती या रेडियो जो पारंपरिक रेडियो है,
उसके पास में कार्यक्रमों की जितनी विविधता है, जितनी वैरायटी है प्रोग्राम्स की, वो वैरायटी दूसरे माध्यमों में नहीं है। क्योंकि आज तो बहुत से एफएम स्टेशन चल रहे हैं, लेकिन उन एफएम्स में उस तरह के नहीं है कोई भी कार्यक्रम। वो आपको क्या बताते हैं, कहाँ जाम लगा है, आणि माझ्याशी बोला, मी तुमच्याशी बोलत राहणार आहे, और फटाफट 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 3-4 भाषाओं में लगातार संवाद होते हैं और बहुत तेजी से होते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से, एक आध कोई लाइन बता दीजिए जो आपको लगता हो कि हम तुरंत नोट कर लें, कहीं रेफरेंस में काम आएगी। जो भी रेडियो सुन रहे हैं एफएम का, आप बता दीजिए कि कोई एक लाइन ऐसी उस प्रसारण से आपको मिलती हो जिसमें आपको लगता हो कि ये संदर्भ के लिए हमारे काम आएगी। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती को आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी को आप सुन रहे हैं, तो कार्यक्रमों की इतनी विविधता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम से ऐसी अनेक संदर्भ मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि हम चर्चा करें। चर्चा न ही करनी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको इस ब्रॉडकास्टिंग में आना है, प्रसारण के क्षेत्र में आना है, मीडिया में जाना है, तो आपको अनेक संदर्भों से जुड़ना जरूरी है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उस राज्य की भाषा एक अच्छे ब्रॉडकास्टर के लिए, एक अच्छे प्रसारणकर्ता के लिए, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस प्रांत विशेष की भाषा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान हिंदी का, कार्य साधक ज्ञान संस्कृत का, और जिस स्टेट में आप रहते हैं या जिस भाषा में आपको काम करना है उस भाषा में सबसे अधिक जानकारी, निपुणता की बात तो हम करते ही नहीं, क्योंकि शब्द को ब्रह्म माना जाता है। और जो लोग ये कहें कि किसी भाषा की उन्हें पूरी जानकारी है, उन्हें हो सकती है, मुझे ये कहने में बेहद संकोच है। किसी भी भाषा की पूरी जानकारी आपको नहीं हो सकती। और ये क्यों जरूरी है कि किस स्टेट में आप रहते हैं। मान लीजिए आप रिपोर्टिंग के लिए गए, और आप रिपोर्टिंग के लिए गए, एक विषय था मराठी भाषी कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट सबको मराठी आती है। हिंदी कितनों को आती है, मतलब हम गलत जगह नहीं खड़े हैं और न ही गलत भाषा में बात कर रहे हैं। तो एक घटना घटी कि किस तरह से भाषा में, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं आपसे कि जब आप मीडिया में काम करना चाहते हो तो क्यों इन भाषाओं की आवश्यकता है थोड़ा थोड़ा जानने की। क्योंकि भाषा में सिर्फ शब्द नहीं होता, भाषा में कल्चर बोल रहा होता है, जिसका कई बार शब्द से कोई दूर तक का वास्ता भी नहीं होता। तो एक घटना घटी और एक हेडलाइन बनी, दिवस जात नसल्यामुळे पत्नीला मारहाण। कितने लोग इस वाक्य के उस कंटेंट पर पहुंच गए कि दिवस जात नसल्यामुळे, क्या संदर्भ है दिवस का, आप लोग समझ गए, सब लोग समझ गए। अब जो लोग मराठी नहीं समझते हैं, ऐसे ही एक रिपोर्टर जिसको मराठी का ना तो कल्चर का ज्ञान था और न ही मराठी भाषा वो समझ रहे थे, उन्होंने पूछा कि हमको भी रिपोर्टिंग करनी है तो इसको मैं क्या लिखें। इनको हिंदी के शब्द नहीं सूझ रहे थे जो हमारे मराठी के रिपोर्टर थे, तो उन्होंने कहा कि वो क्या है कि वो दिन नहीं गुजर रहे थे ना, तो दोनों के बीच में मारपीट हो गई। तो अब दिवस जात नसल्यामुळे इसका कोई संदर्भ, हां एक दूसरे को बता दीजिए जो लोग नहीं समझ पाए। इसलिए हमारा यह आग्रह है कि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा एक कल्चर है, भाषा एक संस्कृति है। और जब आप ब्रॉडकास्ट में आते हो तो आपको इन चीजों की थोड़ी सी जानकारी ऊपरी तौर पर तो होनी ही चाहिए। जितना आप गहरे उतरेंगे उतने आप भाषा के संदर्भ से जुड़ते चले जाएंगे।
रेडियो के संदर्भ में, क्योंकि रेडियो में जो कुछ है, आपको चित्र खड़े करने हैं तो केवल आपकी अपनी आवाज से चित्र खड़े करने हैं। कहीं भी आपके सामने न तो लाइट है, न कैमरा है, न आकृति है, न चित्र है। सुरजीत पातर की एक कविता है सर, वो लिखते हैं कि मैं 8 बैंड का ट्रांजिस्टर हूं, मुझ में बोलता है BBC लंदन, मुझ में बोलता है वॉइस ऑफ अमेरिका। नहीं बोलता तो बस मैं ही नहीं बोलता, मैं 8 बैंड का ट्रांजिस्टर हूं, मुझ में बोलता है वॉइस ऑफ अमेरिका, मुझ में बोलता है BBC लंदन। नहीं बोलता तो बस मैं ही नहीं बोलता, मैं खामोश हूं। तो ये जो खामोशी है, इस खामोशी का भी अपना संप्रेषण है, अपना कम्युनिकेशन है। जब हम कहते हैं ना कि पॉज बोलता है, उसके मायने होते हैं, आपकी भाषा पर वो असर करता है। जब आप आधा शब्द कह के खामोश हो जाते हैं, उस खामोशी का भी एक संप्रेषण है। जब आप पॉज लेते हो किसी एक उपयुक्त जगह पर, और यही सब बातें आपके प्रेजेंटेशन में, आपके प्रसारण में, आपके प्रस्तुतिकरण में बहुत अहम हो जाती हैं। दूसरी जो प्रसारण की महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण। क्योंकि जरा जरा से शब्दों के माध्यम से, चाहे वो आप उर्दू की बात करें, चाहे वो आप हिंदी की बात करें, चाहे आप अंग्रेजी की बात करें, जरा जरा से उच्चारण से आपके अर्थ बदलते हैं। इसलिए दूसरी बात आती है, वो आती है आपके उच्चारण की, कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, अगर आप रेडियो ब्रॉडकास्टर होना चाहते हैं, तो आपको अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना होगा। क्यों? बुझा दिया यदि दीप प्यार का, कैसे तिमिर निवारण होगा। अब यहां तो मामला ऐसा है कि अब तिमिर का अर्थ भी हमको कहना पड़ेगा। क्या है, कोई बता सकेगा कि तिमिर माने क्या है? क्योंकि जब आप एक शब्द नहीं समझते तो पूरा संदर्भ आपसे छूट जाता है। बुझा दिया यदि दीप प्यार का, प्यार तो समझ ही लिया होगा ना सबने, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बुझा दिया यदि दीप प्यार का, कैसे तिमिर निवारण होगा। तिमिर को कहते हैं डार्कनेस को, अंधेरे को। कैसे तिमिर निवारण होगा, और सही अर्थ निकलेगा कैसे, गलत यदि उच्चारण होगा। आप यदि गलत उच्चारण करेंगे तो कई बार सही अर्थ निकलेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 3 शब्द हैं, स्वजन, श्वजन, दोनों हैं। स्वजन, श्वजन, सकृत, शकृत। क्या है स्वजन माने क्या है? स्वजन माने क्या है? अपने लोग, नियरेस्ट डियरेस्ट, वो आपके स्वजन हैं। और श्वजन माने क्या है? श्वजन माने है श्वान या डॉग या कुत्ता। आपके घर में कोई आए और आप उससे बड़े प्रेम से कहें, आइए आइए, आप तो हमारे श्वजन हैं, तो उस पर क्या गुजरेगी? अगर वो भाषा का पंडित हुआ तो वो क्या समझेगा? दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया, कौन सा शब्द था? सकृत। सकृत दर्शने प्रथम, और सकृत विष्ठा। आप समझ सकते हैं कहां चला गया अर्थ। तीसरा एक शब्द, सकल और शकल। सकल क्या है? ग्रॉस, सकल, कुल मिलाकर। शकल क्या है? अब देखिए, यही मजे की बात है। सकल मनोरथ, तो वो तो एक वही हो गया सकल। अब शकल क्या है? उर्दू में तो चेहरा है, लेकिन हम बात कर रहे थे तीनों संस्कृत शब्दों की, तो उसमें शकल है बिल्कुल उसके विपरीत, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, शक्ल।
खंड खंड, टुकड़े टुकड़े। तो जब आप एक विषय में जाते हैं, जब आप ब्रॉडकास्ट की तरफ जाते हैं, तो आपको इन कुछ बेसिक चीजों का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है, तभी आप एक बेहतर ब्रॉडकास्टर हो सकते हैं। रेडियो के संदर्भ में दो बातें मुझे और आपसे करनी है, और अपने मीडियम के संदर्भ में, क्योंकि भारत के संदर्भ में, अभी विश्व के संदर्भ में अगर ये थीम है पीस, शांति, तो रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, और उसने ऐसे संकट के समय पर काम किए हैं। रेडियो की शुरुआत ही ऐसे से हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह तय किया गया कि एक ऐसा माध्यम हम सबके बीच रहे, विश्व के बीच रहे, और तब इसी रेडियो की स्थापना हुई है। क्योंकि जितना आपने कहा लो कास्ट, जितना त्वरित, जितना सस्ता और जितना सुबोध ये माध्यम है, उतना कोई दूसरा माध्यम नहीं है। लाइट चली गई, आप क्या करेंगे? बहुत कम लोगों के पास इन्वर्टर होता है, सबके पास घरों में इन्वर्टर नहीं है, गांव में तो अभी भी नहीं है। तो ये माध्यम ऐसा है कि आप चलते बैठते उठते चलते सब, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाने रेडियो के सुनते सुनते अपने एग्जाम दिए हैं और अव्वल दर्जे से पास हुए हैं। उनमें से एक हम भी हैं। अपना धीरे से रेडियो चल रहा है। रेडियो ने हमें एक सलीका सिखाया, हमें एक मोहब्बत सिखाई। रेडियो से प्रसारित होने वाले गीतों ने आपके अंदर का एक कल्चर डेवलप किया। कितने ऐसे गीत जो आप बार बार सुनते हैं, अब तो पता नहीं, अभी तो आपसे उन गीतों की बात भी करना, क्योंकि हम अक्सर मुठभेड़ हमारी आप लोगों से होती रहती है, तो हमने किसी से पूछ लिया, सर साहिर लुधियानवी को जानते हैं? बोले हम नहीं जानते, नहीं पता। तो इस जनरेशन को अभी थोड़ा सा पीछे, बहुत से गीतकारों को वो नहीं जानते, बहुत से उन गीतों को नहीं जानते, लेकिन हम लोग उन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए। उन गीतों ने हमें विश्व स्तर पर, अगर आप प्रेम की बात करते हो या शांति की बात करते हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। जब तक आप किसी से प्रेम नहीं करते, अपने आप से प्रेम नहीं करते, प्रकृति से प्रेम नहीं करते, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये अलग से नहीं है चीजें। आप ये कहो कि नहीं, प्रेम की तो कोई परिभाषा हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम शांति चाहते हैं, नहीं होगा। रेडियो ने लगातार एक संस्कार दिया। लगातार जिस तरह के गाने उस समय प्रसारित हुए, लोगों को बोलना सिखाया, लोगों को अपने इश्क का इजहार सिखाया। भले ही कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए, लेकिन कम से कम वो एक भाषा दी रेडियो के गानों ने प्रसारित होकर। तो जब हमने पूछा, अच्छा आप हमें बता दीजिए पुराने जमाने के किसी एक गीतकार का नाम बता दीजिए, अभी का बता दीजिए, कोई एक गीतकार बता दीजिए। लगभग 100-125 गीतकारों ने कंट्रीब्यूट किया है, जरूर जी। बैठो, अभी बात करेंगे। आनंद बख्शी, कैफी आजमी, बेटा नुसरत फतेह अली खां कव्वाल हैं, मुबारक अली के बेटे, पाकिस्तान के कव्वाल मशहूर। वो संदर्भ ये है कि न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है। वो जो कव्वाली है वो मुबारक अली बहुत गाते थे। उसका सेकंड पार्ट है, वो है ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। तो ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसके पहले फर्स्ट पार्ट जुड़ना था। तो रोशन ने, चिट्ठियों का ज़माना था सर, रोशन ने चिट्ठी लिखी मुबारक अली को कि हम आपकी ये कव्वाली अपने इसमें लेना चाहते हैं। तो वो इस तरह का कोई रॉयल्टी और ये सब उस समय उतना अहम नहीं था। मुबारक अली ने कहा कर लीजिए इस्तेमाल। साहिर लुधियानवी से कहा कि इसका पहला पार्ट आप लिखो। तब न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है, वो पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट वो मुबारक अली की पारंपरिक कव्वाली जो वो वहाँ गाते थे। तो वो नुसरत फतेह अली खान, यही नाम लिया ना? हाँ, तो ये
मुबारक अली के बेटे और ये कव्वाल हैं आनंद बख्शी। आपने सही कहा, आनंद बख्शी एक ऐसा गीतकार जो बहुत साहित्य में, लिटरेचर में उसका नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गाने उस तरह के नहीं दिए। लेकिन कुछ एक गीतकार ऐसे हुए जिनका लिटरेचर में भी नाम है और फिल्म में भी नाम है। कुछ शायर भी ऐसे ही हुए जो आपने नाम लिया, कैफी आज़मी, वो शायर ज़्यादा और गीतकार कम। साहिर लुधियानवी, गुलजार, एक ऐसा नाम जो लिटरेचर में भी उतना ही प्रतिष्ठित जितना फिल्म में प्रतिष्ठित। वो तो अपने नाम के मुताबिक हैं बिल्कुल। गुलजार, गुलजार का मतलब होता है बगीचा, उपवन, वाटिका, गार्डन, और उसमें कोई एक रंग तो होता नहीं, कोई एक फूल तो होता नहीं, कई तरह के फूल पौधे, तो वही गुलजार में है। वो केवल गीतकार नहीं है, वो एक शायर है, वो एक थिंकर है, वो एक डायरेक्टर है, वो एक कथा लेखक है, वो कहानीकार है, वो डायलॉग राइटर है। इतने सारे रंग उसे एक अपने नाम के मुताबिक हैं बिल्कुल। संपूर्ण सिंह नाम है उनका, वैसे संपूर्ण सिंह कालरा। बाप ने डंडा उठाया कि कहाँ से मिरासी पैदा हो गया हमारे ख़ानदान में, फिल्म में चला गया। बहरहाल, तो ये जो थीम है ये इसीलिए थीम है, और लगातार जिन थीम्स के बारे में बात की गई, तो अंततः मनुष्य का उद्देश्य क्या है? अंततः मनुष्य का उद्देश्य, वो किसी भी माध्यम से बात पहुंचे, लेकिन अंततः मनुष्य का उद्देश्य है वो है शांति। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त सकल बिखरे हो निरुपाय समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अंतिम लक्ष्य है मानवता की जीत। वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो रेडियो माध्यम से हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो दृश्य माध्यमों के माध्यम से हो, लेकिन अंतिम लक्ष्य ये है कि विश्व में शांति हो। और इसीलिए चूंकि अभी तो थीम भी कुछ सोचकर, कुछ घटित घटनाओं को लेकर, क्योंकि जितने आपने अभी जो संदर्भ दिए कि जेंडर इक्वलिटी एक थीम थी, एक युवा थीम थी, एक सहयोग थीम थी, एक स्पोर्ट्स थीम थी, तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर उस तरह की हलचल आज शांति, पीस थीम इसलिए है कि विश्व अशांत है। आप देखिए यूक्रेन और रूस में क्या चल रहा है, तो वो सोचकर, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सोचकर इस तरह की चीजें सामने रखी हैं। मुझे एक नज़्म याद आ गई। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के पस मंजर पृष्ठभूमि में साहिर लुधियानवी ने एक नज़्म लिखी शांति के लिए, जिसमें वो अपील करते हैं और ये कहते हैं, खून अपना हो कि पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, पूर्व और पश्चिम, अमन आदम का खून है आखिर। अमन, शांति। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, जीत का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग अगर टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग अगर टलती रहे तो बेहतर है, हम और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो जब जब युद्ध होंगे तब तक विश्व अशांत होगा। एक जगह का युद्ध दूसरी जगह पर असर डालता ही है। देख रहे हैं ना, अभी आप कह नहीं सकते कि वो बचाव में है या क्या है, लेकिन कहते हैं कि वो रूस में और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इसलिए प्राइजेस बढ़ गई हैं। बहुत से कारण ढूंढ लिए जाते हैं, बहुत सी चीजों के लिए बहुत से संदर्भ होते हैं। तो शांति का ये जो इस बार की थीम है, ये विश्व में जो कुछ चल रहा है उसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, क्योंकि रेडियो एक ऐसी समर्थ शक्ति है, भले ही आज आपको लगता हो आज एफएम पर सुन रहे हैं, आप मोबाइल पर सुन रहे हैं, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। और जितना आप सुनेंगे उतना आप बेहतर बोलेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बेहतर लिखेंगे। इसलिए
रेडियो सुनते रहिए, भले ही आप मोबाइल पर सुने और भले ही आप सेट लेकर सुने। अब तो सेट बाजार में उपलब्ध भी नहीं है सर, अमेजॉन पर हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, तो अब तो बाजार में सेट भी नहीं है। लेकिन कोई चीज अगर पटल से गायब हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका महत्व कम हो गया है, उसका महत्व बराबर बना रहता है। और उस महत्व को पहचानते हुए मेरी तो इस अपनी युवा पीढ़ी से यह आग्रह रहेगा कि रेडियो सुनिए ज़रूर। जब आप रेडियो सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे आप में होने वाले परिवर्तन को। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आप में जो चेंजेस आएंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस हैं उनमें जो बदलाव होगा वो आप महसूस करेंगे। कम से कम 1 महीने आप कंटिन्यूअस रेडियो सुनिए, क्योंकि एक वैरायटी जहाँ से बड़े वैज्ञानिक ढंग से ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रोग्राम्स का शेड्यूल बनाया, बहुत सोच कर लोगों ने शेड्यूल बनाया, क्योंकि शुरुआत होती थी वो मंगल ध्वनि से। सुबह का पहला जो प्रसारण शुरू होता था फिर भक्ति गीतों से, उसके बाद वैल्यू बेस्ड कोई एक 5 मिनट का चिंतन, विचारमणि, तमाम तरह के, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा लगता है कि वैल्यू का कोई महत्व ही नहीं है, मूल्यों का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जड़न घड़न में, व्यक्ति के परिवर्तन में उन मूल्यों का महत्व है। वो एक कार्यक्रम होता था। उसके बाद में फिर कोई छोटी सी टॉक होती थी, फिर क्लासिकल म्यूजिक होता था, फिर न्यूज़लेटर्स आते थे, 8 बजे लंबी न्यूज़ होती थी, फिर क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, फिर और तरह के कार्यक्रम, दिन भर का एक ऐसा कि हर वर्ग, हर श्रोता, हर आयु के लिए हमारे पास कार्यक्रम थे, जो आज प्रसारण में नहीं है। इसलिए आज भी आप विविध भारती सुनिए थोड़ा सा। अब उसके पीछे हमारा कोई निजी स्वार्थ तो हो नहीं सकता, हम तो रेडियो में हैं भी नहीं, रिटायर होके भी 7 साल हो गए। लेकिन आप अगर सुनेंगे तो आप ये पाएंगे, अपने में होने वाले परिवर्तन को आप महसूस करेंगे। ये मेरी अपील आप लोगों से है, सुनते रहिए और सोचते रहिए। सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि मरने के बाद आदमी नहीं सोचता, लेकिन आदमी अगर नहीं सोचता तो मर जाता है। मरने के बाद आदमी नहीं सोचता, मरने के बाद आदमी नहीं बोलता, लेकिन जब आदमी ना बोलता है ना सोचता है तो आदमी मर जाता है। इसलिए सोचते रहिए, बोलते रहिए। और अब अगर आपको हमसे कोई सवाल करें, क्योंकि हम तो बोलते रहेंगे सर, 2.5 घंटे की है प्रैक्टिस, 2.5 घंटे बोल सकता हूं। तो अब मुझे लगता है कि जो मुझे समय दिया गया था, क्योंकि रेडियो में एक महत्वपूर्ण समय है। आज कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अब रेडियो में बहुत से कार्यक्रम नहीं बचे, लेकिन समय आज भी महत्वपूर्ण है। रेडियो अपने समय से ही वंदे मातरम कहता है और समय से ही जय हिंद कहता है। एकदम समय से आरंभ होता है, एकदम समय पर बंद होता है। तो रेडियो के पास आज भी अगर प्रोग्राम नहीं भी बचे तो समय बचा है, वो अपने समय का अनुपालन करता है, डिसिप्लिन में चलता है। तो मेरे समय के हिसाब से मैं अपनी बात कह चुका हूँ। और जैसा सर ने बताया था कि अगर कोई प्रश्न आएंगे तो उनका सामना भी आपको करना पड़ेगा। हमें आता होगा तो बताएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बताएंगे, उसमें क्या है, सबको सब कुछ थोड़ी आता है। तो आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, वो रेडियो के संदर्भ की है कि आज जो वर्तमान है रेडियो का, उसके संदर्भ में वो हम सुना देते हैं। अगर कोई अभी प्रश्न है तो हम प्रश्न करके और फिर वो कविता सुना देते हैं, ज़रूर सुनाएंगे। कहिए तो हम सवाल भी दे रहे हैं। नहीं छीनेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट हैं। आप इस्तेमाल कैसे करते हो इन सारी चीज़ों का, वो आप पर निर्भर करता है। तमाम चीज़ें आई, आपके हाथ में मोबाइल है,
आप कितना इस्तेमाल करते हो ये तो आप पर है ना। तो आदमी का विवेक सबसे ज्यादा उसका बड़ा गुरु है, कुछ भी कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि अंततः करना आपको है, आपने ही ईजाद किया, आप ही उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये आप पर है। बाकी तो बहुत कुछ छीन ही लिया है फिर माध्यमों ने। अब क्या रेडियो नहीं छीन लिया है, मोबाइल ने और इसने छीन लिया ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने कहा कि हम तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये आपके अपने विवेक पर, आपके अपनी सोच पर बहुत सी चीजें निर्भर करती हैं। कभी कभी जब सवाल नहीं होता ना, तो ये सवाल होता है कि आपके पास कुछ है नहीं पूछने के लिए। हाँ हाँ, भरपूर। आप अपने हिसाब से कुछ पूछ लीजिए, कोई जरूरी नहीं रेडियो के ही संदर्भ से पूछे, कुछ और पूछ लीजिए। हमें आता होगा तो बताएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बताएंगे। आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि प्रसारण का विषय ही हो, किताब हो, प्रसारण से रिलेटेड चीजें हो, फिल्म हो, गाना हो। कोई भी आवाज ऐसी नहीं है जो ऑडिबल ना हो, जो श्रवणीय ना हो। जैसे आप बहुत रेयर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन इन आवाजों को कल्चर किया जा सकता है, क्योंकि आवाज अकेली आवाज नहीं है। उस आवाज के साथ में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, तो उस आवाज के साथ में महत्वपूर्ण है आपकी पिच, आपका वॉल्यूम, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका मॉड्यूलेशन, आपका आर्टिकुलेशन, आपकी अपील, आप किस तरह से जो है वो ये सारी चीजें मिलकर आपकी एक आवाज बनती है। इसलिए ये बात सही है कि एक आवाज है जो आपको कुदरत ने बख्शी है, जो आपको प्रकृति से मिली, और एक आवाज है जिसे आपने कल्चर किया, जिसे आपने अपने उच्चारण से, अपने वॉल्यूम से, अपनी पिच के लेवल से, क्योंकि बहुत हाई पिच पर जब आप बात करते हो तो आपकी आवाज की मिठास खत्म हो जाती है। कभी भी जितना आप ऊंची आवाज में बात करोगे उतना ही आपकी आवाज की जो प्लीजेंट रीच है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आपकी पिच, आपका वॉल्यूम, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका मॉड्यूलेशन, आपका आर्टिकुलेशन, इन सारी चीजों से मिलकर आवाज बनती है। और जो आवाजें उस तरह की नहीं हैं जो रेडियो की या माइक्रोफोन के लिए फिट हों, वो बहुत रेयर होती हैं। आप उनको कर सकते हो। अब वो एक अलग पूरा चैप्टर है सर, वॉइस कल्चर का, जिस पर कभी आप अवसर देंगे तो हम पूरा वॉइस कल्चर का ही एक पूरा चैप्टर करेंगे। क्योंकि कुछ लोग टाइम लेते हैं बोलने में, कुछ लोग हकलाते हैं, कुछ लोगों की वॉइस बहुत मफल्ड होती है, कुछ लोगों का एक हिनीनेस जिसे आप कहते हैं उस तरह से शुरू होते हैं वो। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि 90 से ज़्यादा प्रतिशत आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनको कल्चर किया जा सकता है और वो बेहतर होती हैं। जी, कागज़ आपके हाथ में है, लेकिन पूछने के लिए कुछ नहीं है उसमें। जी, क्योंकि रेडियो में सिर्फ वॉइस नहीं है, रेडियो के भी अपने आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। कॉपीराइटिंग का इतना बड़ा स्कोप है, सबसे ज़्यादा एक लाइन लिखने का। हम सर मुंबई में थे और विश्वसनीयता शब्द वो लिख नहीं पा रहे थे जिनके पास वो काम आया था। हमसे उन्होंने पूछा कि ये विश्वसनीयता कैसे लिखना है, प्रिंट मीडिया के लिए था वो। और उस समय 90s की बात हम आपसे कर रहे हैं, उस एक लाइन के लिए 300 रुपए का पेमेंट था उनको। कॉपी राइटिंग में कोका कोला यानी ठंडा, इस ठंडा शब्द के लिए 5 लाख मिले हैं, कोका कोला यानी ठंडा। तो विज्ञापनों की दुनिया में, क्योंकि वहां व्याकरण या ग्रामर महत्वपूर्ण नहीं है, वहां कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है, संप्रेषण महत्वपूर्ण है। तो कैसे लिखना है, कम से कम शब्दों में आप मैसेज कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो रेडियो केवल, क्योंकि रेडियो में भी विज्ञापन आते हैं,
तो रेडियो में केवल आवाज नहीं है, आप रूपांतर कर सकते हो, किसी कहानी का नाट्यानुवाद कर सकते हो। तो तरह तरह के उसमें भी स्कोप हैं कि आप क्या करते हो। किसी कहानी का रूपांतर करो, कोई कहानी लिखो, कोई वार्ता लिखो। डबिंग एडिटिंग, आजकल कंप्यूटर पर डबिंग एडिटिंग है सारी, अब वो निकल गए, डेक निकल गए, सब टर्न टेबल निकल गए सब। अगर आप कंप्यूटर में डबिंग एडिटिंग में एक्सपर्ट हो तो आप डबिंग एडिटिंग करो, बहुत से काम है उसमें। एफएम की जब शुरुआत हुई तो भले ही पारंपरिक रेडियो नहीं आया, लेकिन रेडियो फिर से लौटा और रेडियो सुना जाने लगा। लॉन्ग डिस्टेंस पर लोग अपनी कार में जाने लगे तो टीवी नहीं देख सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते, तो लोग रेडियो सुनते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। सर, जब अमेरिका में रेडियो आया तो लोगों को लगा, कोई मीडियम किसी को बहुत ज़्यादा खारिज नहीं कर सकता, तो लोगों को लगा, क्योंकि पीटर्सबर्ग में 1920 में पहला रेडियो स्टेशन बना, तो जब रेडियो यूएस में जब रेडियो आया तो लोगों को लगा कि अखबारों की जिंदगी खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अखबारों की रीडरशिप बढ़ गई। उसकी वजह यह है कि रेडियो ने जो 1.5 मिनट में छोटी सी कोई बात कही, कोई न्यूज़ दी, एक आधी बातमी सांगितली, वो डिटेल में पढ़ने के लिए लोगों को अखबार की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये कहना कि रेडियो ख़त्म हो जाएगा, रेडियो ख़त्म तो नहीं होगा, विविध रूपों में वो आपके सामने आएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी का जो वातावरण है उसमें ऐसा लगता है कि रेडियो नहीं है, और उसके लिए जिम्मेदार बहुत सा, अगर सरकारी रेडियो की हम बात करें, जो आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सी सरकार की उदासीनता, हमारी ये कविता अभी एक्सप्लेन कर देगी बहुत सी चीज़ों को। तो आपका जो प्रश्न है तो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा अंतर तो आया है और उसे मान्य करना पड़ेगा। अखबार आज नहीं पढ़ रहे हैं, रीडरशिप आज मोबाइल पर चली गई है। पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, और देखने के लिए तो ज़रूर है कि वो मोबाइल पर ही देखते हैं और मोबाइल पर ही पढ़ते हैं। शेष उत्तर आपका इसमें है। इसमें क्या सजेशन हो सकता है सिवाय इसके कि हम कहें कि पढ़ो, किसी भी माध्यम से पढ़ो, है ना, लेकिन पढ़ो, क्योंकि आपको आपका जो वोकैबुलरी है, आपकी जो शब्द संपदा है, आपका जो शब्द संग्रह है, वो केवल और केवल पढ़ने से ही आ सकता है। अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना दोनों ज़रूरी है। और ये बात आप जो पूछ रहे हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पढ़ने लगते हो तो आपका इंटरेस्ट जागृत होता है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपका उससे एक, क्योंकि आजकल ये हम अक्सर ये कहते हैं कि मोबाइल पर जब आप हो तो आप कांटेक्ट में तो हो, क्योंकि आपने अपना नंबर फटाफट उसका ले लिया, तो आपके कांटेक्ट लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो। आप कांटेक्ट में तो हो, आपकी कांटेक्ट लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि जिस तरह के संवाद, जिस तरह की बातचीत, बिल्कुल फालतू बात भी कभी करनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप करते नहीं हो। अब तो बात करना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है, किसी भी माध्यम में पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे तो आपका शब्द संग्रह, शब्दकोश, वोकैबुलरी बढ़ेगी। का प्रसार माध्यमों की स्थिति और अभी के प्रसार माध्यमों की स्थिति, इनमें आपके मुताबिक क्या फर्क है? स्वतंत्रता के बाद और आज स्वतंत्रता के बाद और आज। स्वतंत्रता से पहले भारत में कितने केंद्र थे? पढ़ा होगा ना, 9 केंद्र थे स्वतंत्रता से पहले। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, आपका चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, त्रिचूर, और एक कौन सा? ढाका, लाहौर और पेशावर, 9 केंद्र। विभाजन के बाद हिंदुस्तान में रह गए 6, उस समय के पाकिस्तान में गए 3, ढाका, लाहौर, पेशावर। लेकिन
अब ढाका इधर और लाहौर पेशावर उधर। और इस समय स्वतंत्र भारत में इंदिरा गांधी के ज़माने में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल इंडिया रेडियो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केंद्रों की स्थापना की, अधिक से अधिक लोगों तक रीच हो, इसलिए एक योजना बनी और उस आधार पर बहुत से केंद्र आज भारत में वर्किंग लगभग 469 के आसपास। लेकिन अब उनकी हालत क्या है वो अलग बात है। तो आज केंद्र हैं। कंटेंट के लेवल पर हम ये कहते हैं कि आज हालत भारतीय माध्यम की, इस ऑल इंडिया रेडियो की जरा गड़बड़ है। लेकिन जहां तक केंद्रों के विस्तार का सवाल है, तो स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचने के लिए केंद्रों की स्थापना हुई और वो केंद्र स्थापित होकर, और परिवर्तन केवल कंटेंट के लेवल पर आज भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन, शैली में बदलाव हुआ, स्टाइल बदली ब्रॉडकास्ट की, एफएम की तरफ हम लोग भी झुके कि इस तरह से पारंपरिक ढंग से बोलने से नहीं चलेगा काम। तो विविध भारती अब वही काम कर रहा है। उसने जो दूसरे अपने एफएम गोल्ड वगैरह के शुरू की, तो उसमें स्टाइल बदली और विस्तार हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद विस्तार तो हुआ है, लेकिन अभी उदासीनता है केंद्रों की कार्यशैली में। उतना अंतर जरूर है, लेकिन विस्तार तो हुआ, बहुत तेजी से विस्तार हुआ। आज 450 से ऊपर केंद्र काम कर रहे हैं। अब हमने पूछा था आपसे कितने केंद्र थे, कितने याद रह गए? आजादी से पहले हमने कहा 9 केंद्र थे, कितने याद रह गए? शहरों के नाम तो याद होंगे। फिर अच्छा चलो ये बता दो, पुणे केंद्र में आप हैं, पुणे पर हैं, पुणे केंद्र की स्थापना कब हुई? कभी जाके बोर्ड पढ़ाना। पुणे में तो हैं। आपने कितने लोगों ने विजिट किया है आकाशवाणी? आप लोगों ने किया है। कभी जाकर आप सर यांची व्यवस्था तशी करा, ये विजिट करून येतील। आज ओपन है, आज अगर कुछ लोग जाना चाहें तो आज वहाँ ओपन है, वो देख सकते हैं आप जाकर। एक बार आप विजिट कर आइए तो वर्किंग का एक अंदाज़ा आपको मिलेगा। ये हमारी वॉल पर भी, फेसबुक पर अगर आप जाएंगे तो हमारी वॉल पर भी है, और उसके पहले हमने टिप्पणी लिखी है कि दूरदर्शन पर बार बार दिखाया जाता है, जिसमें माननीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं, मैं ये दिल से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन पर हो सकती है। ये उनका स्टेटमेंट है। अगर आप दूरदर्शन पारंपरिक देखें डीडी, तो उसमें आपको ये कई बार वो प्ले करते हैं। सुनकर सुखद अनुभूति हुई, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन का वर्तमान क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, इस पर हमारी ये रचना काश आदरणीय गृह मंत्री तक भी पहुंच सके। इसको लिखने के बाद सर किसी ने कहा अंदर जाना है क्या? हमने कहा डाल देंगे तो चले जाएंगे। लेकिन जो लिखा है, अब वो आप एक एक शब्द के साथ में, आज दोषी कौन है टाइटल है। थकित है आकाशवाणी मौन है, इस दिवस का आज दोषी कौन है। तंत्र की कुछ चोट ऐसी, मंत्र सारे डर गए, जो थे खाली और उथले सबके सभी भर गए। मूक प्रश्नों का भला क्या कभी उत्तर मिला है, और भीतर घात का भी एक लंबा सिलसिला है। देख लो अब सामने ही एक विरासत का विसर्जन, दुख उन्हें क्यों कर भला हो जिनका अपना था न सर्जन। दुख उन्हें क्यों कर भला हो जिनका अपना था न सर्जन। क्या कहें कि नीति और नियमन का सारा खेल है, क्या कहें कि नीति और नियमन का सारा खेल है। जी नहीं ये और कुछ है और ठेलम ठेल है, मन की बातों के लिए आकाश सारा है खुला। आप पहुंचे वहां तक। मन की बातों के लिए आकाश सारा है खुला, मन की पीड़ा हो अगर तो कौन सुनता है भला। बस इसी एक प्रश्न पर व्योम सारा मौन है, इस दिवस का आज दोषी कौन है। अब यहां न शब्द से कुछ प्यार है। हमारी संस्था आकाशवाणी नहीं रही है, प्रसार भारती है। अब यहां न शब्द से कुछ प्यार है और न सुर की कोई झंकार है। संस्कृति के द्वार पर ही बैठकर चल रहा ये अर्थ का व्यापार है। आप कुछ भी अपना प्रोग्राम ले जाइए, स्पॉन्सरशिप साथ में ले जाइए, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब यहाँ न शब्द से कुछ प्यार है
और न सुर की कोई झंकार है। संस्कृति के द्वार पर ही बैठकर चल रहा ये अर्थ का व्यापार है। वर्जना के सारे अवसर हमने खुद ही खो दिए, बीज कांटों के जमी पर हमने खुद ही बो लिए। आत्मश्लाघा में रहे भूले हुए भटके हुए, और खुश थे सदा जो स्वार्थ में अटके रहे। प्रसारण का जिन्हें अब जरा न याद है। प्रसार भारती प्रसारण का जिन्हें अब जरा न याद है। सा है साहित्य का ये भी कहाँ अब ज्ञात है। रस रंजन का जिन्हें अब तनिक न भान है, और न ही भारती के भाल का सम्मान है। प्रसारण का जिन्हें अब जरा न याद है। सा है साहित्य का ये भी कहाँ अब ज्ञात है। रस रंजन का जिन्हें अब जरा न भान है, और न ही भारती के भाल का सम्मान है। दो भुजाओं से बना ये अजब सा त्रिकोण है। इस दिवस का आज दोषी कौन है। सबे भूमि गोपाल की सूर जो है कह गए। अर्थ तो समझा नहीं बस सूर होकर रह गए। बहुजन हिताय का जो अर्थ और संकल्प है, हमारा नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और ये नारा बौद्ध त्रिपिटक से आया है। उसका पूरा श्लोक है चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय सुखाय देव मनुस्साम। ये बौद्ध त्रिपिटक का एक श्लोक है, उसके में से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिया है। सबे भूमि गोपाल की सूर जो है कह गए। अर्थ तो समझा नहीं बस सूर होकर रह गए। बहुजन हिताय का जो अर्थ और संकल्प है, आदर्श का इस आज भी न दूसरा विकल्प है। जब भी ऊंचे पदों पर लोग ओछे बैठते, जब भी ऊंचे पदों पर लोग ओछे बैठते, सोच भी ओछी ही रहती बेवजह ही ऐंठते। खोखले आदर्श इनके भाषणों का दौर है। खोखले आदर्श इनके भाषणों का दौर है। बात हो निज स्वार्थ की तो आचरण कुछ और है। दोहरे चरित्र हैं और हैं बड़ी विडंबना। अब नहीं है आस कोई और न संभावना। बस अंधेरे में खड़ी आज सारी कौम है। इस दिवस का आज दोषी कौन है। थकित है आकाशवाणी मौन है। इस दिवस का आज दोषी कौन है। हमने अपने को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति केंद्रों पर चली, तो हमने कुछ कुछ लाइनें अपने लिए भी कही हैं कि किस तरह से हम लोग भी केवल आत्मश्लाघा में और किस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे रहे, और कुल मिलाकर धीरे 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 मरण की ओर ये की संस्था जाने लगी। साठे साहब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, भीतर बाहर दोनों तरफ से। तो मैं आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि आपसे हम संवाद कर सकें, बात कर सकें, और जो कुछ हम कहना चाहते थे अपनी ओर से कहने की कोशिश की है। कितनी आप तक पहुंची ये आप पर है, और फिर कभी मौका हुआ तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। अच्छा लगता है, इस जनरेशन से बात करना अच्छा लगता है सर, क्योंकि कठिन भी है इस जनरेशन को बांधे रखना, इससे बात करना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सब ध्यान से सुना। एक ऑल इंडिया रेडियो क्या है, आप विजिट करने के लिए जाएं अगर, तो उसके पहले आप ये आकाशवाणी किस तरह से काम करती है, हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो वो डॉक्यूमेंट्री आप देख लें, 5.5 मिनट की। 2 अक्टूबर 1953 पुणे शहर के कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य आकाश पर एक स्वरलहरी ध्वनि तरंग उभरी और इसकी गूंज अनुगूंज बनकर नित्य प्रातः घर घर में गूंजने लगी। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का महत् उद्देश्य लेकर आकाशवाणी पुणे केंद्र ने अपना कार्य आरंभ किया और इस अंचल के इतिहास, संगीत, संस्कृति, साहित्य और लोक जीवन के जीते जागते चित्र उकेरे, प्रस्तुत किए। कलाकारों ने अभिनंदन किया और किया अपनी कला का प्रदर्शन। हम अपने कार्यक्रमों में विविध विषयों, संदर्भों, पर्व और जयंतियों की चर्चा करते हैं और इन कार्यक्रमों को सुनकर हमारे श्रोता हमें पत्र लिखते हैं। साथ ही अब पत्रों के साथ ही जुड़ गया है फैक्स और ईमेल भी। सन 1953 से 2013 60 वर्ष बीत गए और 2 अक्टूबर 2012 से लेकर
अक्टूबर 2013 तक हमने इस केंद्र का 60वां जन्म दिवस वर्ष भर मनाया। इसे हीरक महोत्सवी वर्ष कहा गया। इस संपूर्ण वर्ष में हमने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। महानिदेशालय की प्रॉपर्टीज की रीपैकेजिंग की संकल्पना को पुणे केंद्र ने बखूबी अंजाम दिया। कार्यक्रम का नाम था साठा उत्तराची कहानी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण वर्ष केंद्र के संग्रहालय में उपलब्ध अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग उपयुक्त शब्दांकन के साथ प्रस्तुत की गई। वर्ष चाहे व्यक्ति के जीवन के हों या संस्था के, उसके साथ जुड़ी होती हैं अतीत और वर्तमान की अनेकानेक यादें, कुछ घटनाएं और संदर्भ भी। पुणे केंद्र का आरंभ हुआ पुणे रेलवे स्टेशन के पास सेंट्रल बिल्डिंग के नाम से जानी जाने वाली इमारत की तल मंजिल में। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थीं आज की ख्यातिलब्ध फिल्म निर्देशक पद्म भूषण सई परांजपे और केंद्र के पहले निदेशक थे नंदलाल चावला। पुणे केंद्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी इस केंद्र पर निर्मित गीत रामायण से। संपूर्ण महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का कीर्तिमान बना। हमारे अंचल और केंद्र का कोई वासी जब संपूर्ण देश का गौरव बन जाए तब गदगद हो जाता है मन, किंतु अगले ही क्षण उनके न होने का स्मरण कर भर आता है मन। भारत रत्न स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी का इस केंद्र पर रिकॉर्डिंग के लिए आना आज भी रोमांचित करता है और उनका स्वर स्फुरण भरता है। क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल। प्रकृति और मनुष्य, समाज और जीवन का संबंध अविभाज्य है। समाज में महिलाओं की उपस्थिति और साझेदारी एक अनिवार्य शर्त है। महाराष्ट्र की जुझारू महिलाओं पर केंद्रित जिंदा कहानियां शीर्षक की 13 कड़ियों ने महिला शक्ति के संघर्ष और इस संघर्ष में उनकी जय और विजय को रेखांकित किया। इसी तरह की अनेक श्रृंखलाएं यथा अथातो शास्त्र जिज्ञासा, बौद्ध विचारधारा, कोसला, शारदा संगीत, ही गजल मुसाफिरी, वाद्यवेद, प्रवास, टप्पा गायन शैलीचा, रंग स्वरलहरी, विज्ञानाचा कल्पतरू आदि के प्रसारण ने ज्ञान विज्ञान, संगीत और शास्त्र के अनेक पहलुओं को उजागर किया, रेखांकित किया। विज्ञान ने अपने नए आविष्कारों से प्रसारण को भी नए आयाम दिए। पुणे केंद्र को ये श्रेय मिला है कि उसने प्रसार भारती के राष्ट्रीय पारिवारिक ब्लॉग की रचना की। ब्लॉग की कोर टीम पुणे में स्थित है। आज इस ब्लॉग के लगभग 2.5 लाख पेज व्यूज हो चुके हैं। इस ब्लॉग का उद्देश्य है प्रसार भारती परिवार के सदस्यों, केंद्रों की उपलब्धियों, विशेष कार्यों, कार्यक्रमों, व्यक्तिगत सुख दुख के क्षणों का अवलोकन, सहभागिता, चिंतन और एक संवाद की स्थापना। ये ब्लॉग है देश और प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी की उत्सुकता तो होती ही है। आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता आज भी कायम है। पुणे में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन की शुरुआत 1 मई 1975 से हुई। इसके अलावा 2-2 मिनट के 5 हेडलाइंस बुलेटिन भी विविध भारती एफएम पर प्रसारित होते हैं। जीवन में उत्साह और उमंग भरता है संगीत। संगीत लोक जीवन का संबल भी है और स्पंदन भी। केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम श्रोताओं के मन को संवेदना से भर देते हैं। आकाशवाणी पुणे केंद्र आज मानो कवि कुसुमाग्रज के शब्दों में दोहरा रहा हो, मैं एक था, अब अंशों अंशों में, हजारों जीवनों में, कदाचित उनकी स्मृतियों में भी बट गया हूं। अब आप जब विजिट के लिए जाएं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा तो
कि किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से वहाँ वर्किंग है, वो आप बेहतर समझ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कभी मुलाकात हुई तो फिर से आएंगे। हमारे छात्र आपके शब्दों से बिल्कुल प्रभावित हो चुके होंगे तथा वो आज से नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से रेडियो की तरफ देखेंगे और सुनेंगे। कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव के लिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर शाश्वती श्वेता जी को निमंत्रित करना चाहता हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। निश्चय ही सर, बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र था सर। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की तरफ से डॉक्टर सुनील देवधर सर का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ सर कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आप हमें आए और इतनी रोचक बातें बताएं। और मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आज के बाद विद्यार्थी रेडियो का ये दृष्टिकोण भी समझेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है कि रेडियो की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये बात आप समझेंगे और थोड़ा सा अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी विभागाध्यक्ष डॉक्टर साठे सर का, जिनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम कर पाए, और अपने सभी शिक्षकगण का जिन्होंने अपना अपना सहयोग दिया इसको सफल बनाने में, और सभी विद्यार्थियों का जो यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग अस फॉर दिस सेशन। आज का कार्यक्रम यही खत्म हुआ।